The bulletin and the day with tragic news coming in from the Jammu and Kashmir Valley. This is with regards to an encounter operation that was ongoing there, and then a terror spike in the valley, which has led to some very consequential aftermath that's taken place there. Very tragic incident that's taken place there, claiming the lives of 4. Let's take a look at the story, diving right into it. 5 Indian Army soldiers were killed and 5 injured after terrorists attacked a military convoy in the remote Machhedi area of Jammu and Kashmir's Kathua district on Monday afternoon. Now, encounter is still underway between the troops and the terrorists in the area, and the operations continue to take place. The injured have been shifted to hospital for treatment. The injured are being given primary treatment at the Community Health Centre, Bilawar, and have been referred to the military hospital, Pathankot, for further treatment. Reports suggest the terrorists initially targeted an Indian Army vehicle with grenades, suspecting a planned terror attack. An official said that the army swiftly retaliated, but the terrorists fled into the nearby forest. Reinforcements were then rushed in, and a search operation was launched to track down the terrorists. Now, what is very crucial here is the fact that Jammu and Kashmir's security challenge continues to be there, wherein this is the second attack on the Indian Army in the Jammu region in the past 48 hours. On Sunday, an army camp in Rajouri was attacked, in which 1 soldier sustained injury. Yesterday's attack came 24 hours after 6 terrorists were killed across 2 separate encounter operations in Jammu and Kashmir's Kulgam district. The encounters, which began on Saturday, also claimed the lives of 2 soldiers. Now, the first encounter took place in the Modargam village, in which a soldier was injured, while another fierce gun battle unfolded in Kulgam's Frisal area, in which 1 soldier was killed and another was injured. Meanwhile, Congress MP and the Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi expressed grief over the killing of the soldiers in a Kathua encounter. He wrote, and I quote him, "The news of the terrorist attack on an Indian Army vehicle in Kathua, Jammu and Kashmir is extremely sad. While paying my emotional tribute to the martyrs who sacrificed their lives for the motherland, I express my deepest condolences to the bereaved families. I pray for the speedy recovery of the injured soldiers. These cowardly attacks on our army are highly condemnable. The 5th terrorist attack within a month is a grave blow to the security of the country and the lives of our soldiers. And the solution to this relentless terror attacks will only come from strong action, not from hollow speeches or false promises. We stand firmly with the country in this hour of grief." कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कायराना हमला किया है। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के ज़िला कठुआ के मशेडी क्षेत्र में जंगल के बीच से गुजरते हुए सेना के एक वाहन को रात के अंधेरे में निशाना बनाया है। इस आतंकी हमले में हमारे जांबाज वीरों ने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनके इस बलिदान को नमन करता है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस कर्तव्य परायणता को नमन करता है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी छिपकर जिन्होंने पीठ पर वार किया है, इनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमारी सेना ने चुन चुनकर पहले भी सफाया किया है और आगे भी इनके हर षड्यंत्र को विफल किया जाएगा। Well, with that, now we in fact bring to you a ground report that our colleague brings us from this particular region, Ankit Bhatt. He'll take us through exactly what is underway on the grounds there. Let's take a look. कठुआ के मछेड़ी इलाके में भारतीय सेना के वाहन पर आतंकियों की तरफ से
फायरिंग की गई और इसी फायरिंग में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए, तो वहीं 4 जवान जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन कुठवा और कुठवा के आसपास के इलाके में पूरी तरीके से यहाँ पर जो अलर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर एक चेकिंग पॉइंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो आतंकी हैं वो यहाँ से भाग ना सके। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो बेहद ज़्यादा अलर्ट है और यहाँ पे हर एक वाहन की यहाँ पर बारीकी से जांच कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि राजौरी में किस तरीके से आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के एक कैंप में फायरिंग की गई। हालांकि पूरी तरीके से सेना ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया, लेकिन तस्वीरों में आज देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो बेहद ज़्यादा अलर्ट है, क्योंकि आज कुठवा के मछेड़ी इलाके में आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के वाहन पर हमला किया गया और इसी हमले में सेना के 4 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और 4 जवान इंजर्ड बताए जा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस का एक नाका है, जहां पर आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहां पर अलर्ट है, बेहद ज़्यादा अलर्ट नज़र आ रहे हैं। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जवान जो है वो यहाँ पर हर एक वाहन की बारीकी से यहाँ पर जांच करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो जम्मू संभाग में चाहे वो डोडा हो, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो रियासी का इलाका हो या फिर अब कठुआ का इलाका, पूरी तरीके से आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पर शुरू किया गया है ताकि जल्द से जल्द उन आतंकियों तक पहुँचा जा सके। पूरी तरीके से जो पुलिस है वो यहाँ पर अलर्ट है ताकि किसी भी तरीके से आतंकी जो है वो यहाँ से भाग ना सके और उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। Well, with that, in fact, we have Ankit Bhatt joining us on the broadcast to bring us more details with regards to this particular terror attack that's taken place in Kathua. Ankit ji, very good morning आपको. Firstly, तो हमें ये बताइए कि अभी जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि एनकाउंटर ऑपरेशन अभी भी जारी है उस जगह पे जहाँ पे ये टेरर अटैक हुआ है. अगर आप हमें थोड़ी और जानकारी दे पाए कि एग्जैक्टली अभी वहाँ क्या हालत है. देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं और उसके साथ साथ जैसे ही आतंकियों की तरफ से सेना के वाहन पर फायरिंग की गई और उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से भी जो रिटेलिएशन है वो आतंकियों पर किया गया। वहीं आतंकी जो है, क्योंकि घने जंगल का इलाका है, आतंकी घने जंगल में भाग जाते हैं और उसी बीच में सेना फोर्सेस और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पूरे इलाके को यहाँ पर घेरे हुए है। लगातार जो सेना जम्मू कश्मीर पुलिस की प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरीके से आतंकी जो है वो इस इलाके से भाग ना सके और साथ में जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले में भारतीय सेना के 5 जवान इंजर्ड बताए जा रहे हैं और 5 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। लगातार We will try and re-establish that connection with Ankit Bhatt, but right now these are the latest information that we are bringing to you. The challenge that the Jammu and Kashmir security forces are facing with regards to the terrorists, and in over the past few weeks we've seen the kind of terrorists, the kind of extent till which these terrorists have developed their base in the particular valley. But right now, let's also bring to you another conversation that our colleague Ankit Bhatt himself had with a medical officer, bringing us the latest updates of those who are injured and hospitalized. What state are they currently in? Let's just take a look at that before we proceed with our discussion over this rather tragic terror attack that's taking place in the valley.
मछेड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के जो 5 जवान जो घायल हुए हैं उनको बिलावर लाया गया और यहाँ से अब शिफ्ट जो है वो कुटवा किया गया है। पूरी तरीके से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अलर्ट मोड पे है और यहाँ पे डॉक्टर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। मैम, कितने जवानों को यहाँ पे लाया गया था? 5 5 जवान। यहाँ से कहाँ रेफर किया गया? MH हॉस्पिटल पठानकोट। पठानकोट में। तो मैम कोई डेथ जो यहाँ पे लाई? एक डेड बॉडी लाई गई है यहाँ पे, अभी 4 का कुछ कह रहे हैं, 4 और हैं। 4 और आएंगे। तो मैम जो इंजर्ड थे क्या कुछ हुआ था? इंजर्ड को बुलेट इंजरीज थी, स्प्लिंट इंजरीज थी। उनको अब यहाँ से रेफर किया गया। हाँ जी। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे डॉक्टर को सुन सकते हैं जो बता रहे हैं कि अब यहाँ से मिलिट्री हॉस्पिटल में जो भारतीय सेना के जो इंजर्ड जवान हैं उनको यहाँ से अब रेफ़र किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 5 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए इस एनकाउंटर में और लगातार सेना का जो महा ऑपरेशन है वो इस वक्त चल रहा है ताकि आतंकियों की जल्द से जल्द धरपकड़ की जा सके।